Hello and welcome to this new episode of Shrishti, the 13th episode. Uh, Shrishti, which is a fortnightly podcast, and it stands for sharing her real incredible story, highlighting talents and inspiration. So every fortnight, we listen to a story which is shared by our female guests, and we listen to how, being a woman, they have carved their way out. Uh, they have decided on what to do, how they have use their mental tools to come and grow in the field, in the area, in the position that they are currently in. Before introducing my guest today, I want you to reflect on what independence truly means to you. Even if you are a man or a woman, whoever listening to this episode is, I want them to understand and to quickly think about what true independence is, because we have just celebrated our Independence Day. So, this is an Independence Day special episode. And when we start thinking about what real independence means to us, there are a lot of things which would come to your mind, because we are far away from that time when we were actually ruled by someone else. Today, we are ruled by other things which are around us, the environment we are living in, and most often we are ruled by our own thoughts. These could be empowering thoughts, these could be limiting thoughts. So, today's guest is going to talk about what true independence means when it comes to our individual selves. She's going to help us understand how being healthy can make you feel truly independent, how knowing what you are consuming, what you are eating, what nutrition you are giving to your body, how knowing all of this can help your body to actually grow optimally, not just physically, but psychologically, mentally, and holistically, most important. So, our guest today is Deeksha Sinha. She's a two-time entrepreneur and she's a holistic nutrition consultant. She's also a certified yoga teacher, founder of Transform with Deeksha. So, when I say transform, it's actually transformation from the way we usually do things, we usually consume food, to the way we consciously start doing it. Her own journey, which included a phase where she lost over 45 kgs, and she actually built up her health, rebuilt her health rather. And today she is in a position to not just preach about things, not just share what she has learned through theories, but she has lived that. So she knows holistically how a journey of unhealthy to healthy, uh, real, what that journey needs in the real way. Not just guidance, not just diet plans, not just pep talks, but much, much more than that. So she's in a position to guide people to actually transform themselves, transform their thoughts, transform their habits, their eating patterns. And all of this is not only directed in managing weight, not just physical appearance, not just beautifying the skin or strengthening your hair. Sorry, it actually involves a holistic transformation. So today, she's focused on helping women regain their confidence, improve their health, improve their lifestyle, and all of this is done through simple yet sustainable changes, not something that we are following for a short period of time, gaining our ideal results that we want, and then going back to our patterns. No, she's trying to build habits. She's trying to build sustainability. And she's also a Josh Talk speaker, and she aims to inspire women to again start believing in themselves and start taking charge of their health.
So it's going to be a lovely episode. We'll have a lot of revelations about what true independence is and how, if you are healthy, you can contribute towards a better society, towards a better family, and a happy family. So happy you and happy family, of course. So join me in welcoming Diksha to this episode, and we are very honored to help have her today and to listen to all the insights that she has rightfully and so easily shared with us. Let's welcome Diksha. First of all, thank you so much, Diksha, to this accept to come in this episode, क्योंकि ये हम इंडिपेंडेंस डे स्पेशल कर तो रहे हैं, बट हम आज देश की आजादी से ज्यादा हम इंडिविजुअल आजादी पे बात करना चाहते थे, एंड दैट इज द रीजन कि वी वांटेड यू टू कम एंड शेयर योर इनपुट्स, बिकॉज real freedom comes from within, and it comes only when you are healthy, when you are taking care of yourself. So thank you once again for joining us. Oh, thank you, Nivedita. Thank you calling me for this particular episode because ये बहुत important है मेरे लिए भी, क्योंकि यहाँ से हम बहुत सारे लोगों तक रीच करेंगे एंड उनको भी बताएंगे Yes, कि क्यों इम्पोर्टेंट है हेल्थ को इतना प्रायोरिटाइज करना, स्पेशली फॉर फीमेल्स. absolutely, absolutely. So हम शुरू करते हैं with your story, because the word itself, like your brand itself, transform, talks about something जहाँ पे हम freedom seek करते हैं. So who is Diksha beyond the profession? ओके, बियॉन्ड द प्रोफेशन, बियॉन्ड एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, बहुत ही आम सी बहुत सारे रोल निभा रही हूँ. एक डॉटर का, एक वाइफ का. बाय एजुकेशन आई एम एन इंजीनियर. Yeah. And now I've changed my profession completely. And मुझे लगता है कि I just love talking. I just बहुत क्रिएटिव है मेरा, मतलब मुझे एक जगह ठहर नहीं मिलता. हर समय मुझे कुछ ना कुछ नया करने को चाहिए होता है, वेदर इट्स डांसिंग और वेदर इट्स स्केचिंग. सो या आई एम अ वेरी जॉली पर्सन. मतलब मेरे साथ कोई बैठेगा तो हंसता तो रहेगा थोड़ी देर तक के लिए. सो या बियॉन्ड माई प्रोफेशन आई एम अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. क्या बताऊं, एक ऐसे आम इंसान हूँ जो सब कुछ टेक केयर कर रही है बट अपने लिए भी थोड़ा समय निकालने की कोशिश कर रही है उस पूरी जर्नी में. Absolutely. Wonderful. So, जैसे हम ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे थे, तो every transformation has a beginning. So, where did it begin for you? ओके, तो खैर मेरा चैलेंज तो ये था कि मैं हमेशा से ही इसको कम ज्यादा खेल ही बना के चल गई थी. पूरी लाइफ मेरी निकल गई, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स तो निकल ही गई मेरी लाइफ के इसको कम ज्यादा वेट को मैनेज करना, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम. बट मैंने इवेंचुअली ये फाइंड आउट किया कि मुझे पता नहीं चला आफ्टर माई मैरिज कि कब मैं अपनी सबसे लास्ट प्रायोरिटी बन गई. Mhm. मुझे पता ही नहीं चला इस जर्नी में कि काम इंपॉर्टेंट हो गया, हस्बैंड इंपॉर्टेंट हो गए, इन लॉज इंपॉर्टेंट हो गए, मेरी अपनी फैमिली इंपॉर्टेंट हो गई, बट मैं Mhm. सबसे लास्ट हो गई. एंड उस जर्नी ने मुझे ये बताया, मतलब मैं जब याद करती हूँ मेरा सबसे ज्यादा, जब मैं सबसे ज्यादा हेल्दी थी तो इट्स Mhm. लाइक 120 kgs. Mhm. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इट्स नॉट अबाउट वेट. ये वेट की Mhm. कहानी ही नहीं होती, इट्स अबाउट फीलिंग डिस्कनेक्टेड फ्रॉम यू. तो जब मैं Correct. शक्ल देखती थी अपनी आईने में तो मैं तो पहचान ही नहीं पाती थी कि ये मैं हूँ. दिस मच Mhm. डिस्कनेक्शन हो गया था. फोटोज खींचने के लिए इतना, मतलब सबसे पीछे मैं खड़ी होंगी, इतना ही फोटो खिंचवाऊंगी. आई आई डोंट फील कंफर्टेबल, बिल्कुल कंफर्ट नहीं आता था कि क्यों खिंचवाऊं, नहीं नहीं अच्छी नहीं Mhm. लगूंगी. बिल्कुल पीछे बैक बेंचर टाइप बन गई थी. इवन अपने बिजनेस में मैं बैक बेंचर बन गई थी. आई एम Mhm. द फेस, आई एम द नेम, बट मैं सामने नहीं आ पाती थी. Mhm. मुझ में इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं बचा था. सो दिस काइंड ऑफ डिसकनेक्शन आई हैव फेल्ट इन माय जर्नी. एंड एक टाइम, वही फाइनल टाइम यही आया कि बिकॉज आई वॉज डूइंग माई ओन बिजनेस एट दैट टाइम, उसको मुझे शट डाउन करना था. नाउ तो जिनके साथ तुमने इतने साल काम किया दे हैव गॉन. Right. नाउ यू डोंट हैव एनीथिंग, यू हैव शट डाउन योर बिजनेस ऑल्सो. सो Mhm. फाइनेंशियली भी वहां पर एक बैरियर आ गया, Correct. क्योंकि अब Mhm. वहां पर बैरियर फाइनेंशियली भी है
और इमोशनली भी है, क्योंकि तुम जब 12 घंटे 15 घंटे किसी के साथ काम करते रहते हो ना, तुम्हें हम्म। पता ही नहीं चलता कि कब वो तुम्हारी फैमिली जैसे हो जाते हैं या वो तुम्हारे दोस्त बन जाते हैं। अब वो भी करेक्ट। नहीं। तो हम्म। अकेला, एक अकेले जोन में बैठना था। तो वहां पर हम्म। तुम्हारी बॉडी एक्चुअली इमोशनली, मेंटली, हर तरह से, फिजिकली, हर तरह से, मतलब मेरी तो बॉडी बिल्कुल ही खत्म हो गई थी उस समय। एंड बॉडी शट हम्म। डाउन। बॉडी के सिम्टम्स होते हैं हमेशा हम्म। जहाँ वो शट डाउन कर देती है, तो मेरी बॉडी ने भी शट डाउन कर दिया। तो मेरे को, मैं उठती थी और फिर सो जाती थी। हम्म। फिर मुझे महसूस हुआ कि यार ये कैसी जिंदगी जी रही हूँ मैं, ये क्या है। हम्म। कभी राइट। ऐसा हो ना, इसको पुश करना पड़ेगा। तो वहां मैंने बहाने देने बंद करे और मैंने बोला हम्म। कि भैया अब काम करना है। तो दैट वाज माय पीक, कि वहां तो मतलब गिव अप है। अब नहीं हो सकता। राइट। राइट। ओके, तो मतलब वो आपका डिफाइनिंग मोमेंट हो गया कि अब तो कुछ करना है। हाँ, बिकॉज आई राइट। रेड राइट। वन बुक, उसमें साफ मेंशन था, मतलब उस बुक को मैं पढ़ रही थी कुछ दिन से, एंड उसमें एक चीज मेंशन थी बहुत ज्यादा, मुझे मेरे दिल पे बहुत ज्यादा लगी। मैं आज अपने क्लाइंट्स को भी ये बात बोलती हूँ कि अगर तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी हुआ है ना, तो उसको ये मत बोल के छोड़ दो कि उसने कर दिया, इसकी वजह से हुआ, ऐसा इसने कहा। क्योंकि जब तुम ये बोलते हो तो यू लूज द अकाउंटेबिलिटी ऑफ दैट थिंग। एंड अग्री। जहां तुमने वो अकाउंटेबिलिटी छोड़ दी, तुमने वो पावर भी छोड़ दी कि उस सिचुएशन को तुम बदल सकते थे। करेक्ट। करेक्ट, ये बहुत पावरफुल है एक्चुअली। तो बस ग्रेट। वहां से मुझे ये लगा कि हाँ, मैंने क्यों छोड़ी ये, जो कुछ भी हुआ, चाहे उसमें मैंने कितना इनपुट दिया या नहीं दिया, बट आज मैं इसका वापस लेती हूँ इसको कि मेरी ही वजह से हुआ। सो बस दैट्स राइट। चेंज। ग्रेट। ग्रेट। सो वेट इज वन थिंग ऑफ कोर्स, जैसे आपने बोला, बट गेटिंग हेल्दी इज समथिंग जो इट रियली ट्रांसफॉर्म्स योर लाइफ। सो व्हाट डिड इट ब्रिंग इन योर लाइफ व्हेन यू टुक दिस पाथ ऑफ गेटिंग हेल्दी? बहुत कुछ, बहुत कुछ। मतलब मुझे लगता है कि इतना तो मैंने अपनी पूरी एंटरप्रेन्योर जर्नी में नहीं सीखा जितना इस जर्नी में सीखा। क्योंकि यहाँ से जब आप अपनी हेल्थ पे काम करते हो ना, सबसे पहली चीज तो आप डिसिप्लिन में आते हो। वो तो कोई नॉन नेगोशिएबल है, डिसिप्लिन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो वो राइट। डिसिप्लिन एक जगह तो आ नहीं रहा, वो आप धीरे धीरे, तो वो अलग एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में भी दिखता है। करेक्ट। करेक्ट, सेम विद बिल्कुल। कंसिस्टेंसी, क्योंकि हर दिन आपको अपने ऊपर काम करना है। तो अपने ऊपर ही काम नहीं करना, आपको बाकी चीजों पे भी काम करना है। सो यू लर्न डिसिप्लिन, यू लर्न कंसिस्टेंसी। अब क्या होता है, इसमें आप फील गुड भी करना स्टार्ट करते हो, बिकॉज आपका वेट कम हो रहा है, आपकी बॉडी में एनर्जी वापस आ रही है। राइट। राइट। ठीक है। अब आप वही काम जो रोज कर रहे थे रो के, अब थोड़ा हंस के कर रहे हो, क्योंकि आपके पास एनर्जी ज्यादा है, तो आप इजीली मैनेज कर पा रहे हो। करेक्ट। उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस वापस आता है, क्योंकि जब आप सही में देखने में अच्छे लगते हो ना, आपको कपड़े फिट आने लगते हैं, आपको लगता है कि ये अच्छा लग रहा है, शीशे में शक्ल अच्छी लग रही है, देन यू फील कॉन्फिडेंट, और उससे आप दूसरे लोगों से भी इंगेज करते हो। वो एक कमरे में बंद होना बंद हो जाता है। करेक्ट। करेक्ट। एंड फॉर मेरे लिए तो बिल्कुल ही ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल चेंज हो चुका है, एनर्जी लेवल चेंज हो चुके हैं, कितना कुछ अब मैनेज कर लेती हूँ बिना झिकझिक करे हुए। इजीली मैनेज है। और सबसे बाद में मुझे तो पर्पस भी मिल गया, बिकॉज आई फाउंड माई पर्पस, नाउ आई एम हेल्पिंग अदर्स। सो ट्रांसफॉर्मेशन ने तो मतलब मुझे बहुत ही कुछ दे दिया है। आई थिंक यही रियल फ्रीडम है, जब आप सारी चीजें जो आपको रोक सकती हैं उनसे निकल के व्हेन यू गेट योर आइडेंटिटी एंड ऑल्सो पर्पस। क्योंकि हाँ, जो आपने जिया हुआ है उस चीज के लिए किसी को गाइड करना इज मच रेलेवेंट और ऑथेंटिक भी है। क्योंकि मतलब लोग देख सकते हैं कि हाँ, अगर आपने वो जर्नी करी है तो अगर आप उसके बारे में बात कर रहे हो तो सही भी है। सो ग्रेट। नॉट लिव, मतलब इट्स नॉट जस्ट व्हाट आई स्टडीड, इट्स जस्ट व्हाट आई लिव। तो मैं तो लोगों को यही बोलती हूँ, इससे पढ़ाई नहीं है, मैं तो खुद उस जर्नी से गुजरी हूँ। तो जब लोग मुझे ये बताते हैं ना, आई डोंट नो व्हाट टू डू, मुझे चेंज तो होना है, बट मुझे मुझे पता है वो फीलिंग, कि राइट। जहाँ राइट। आपको सच में नहीं पता, आप फंसे हुए हो कि हाँ यार करने का मन तो है, बट आई डोंट नो। करेक्ट। हाँ, और ये बहुत स्ट्रांग है आई थिंक, क्योंकि नॉलेज होना एक चीज है, बट वही जो फील हम कर रहे हैं, मतलब आप किसी को गाइड कर दोगे कि आप ये कर लो, बट उसके बीच में हम फिजिकली इमोशनली हर तरीके से इन्वेस्टेड होते हैं। तो जब तक हमारा मेंटर या गाइड वो ना समझे कि हम क्या फील कर रहे हैं, तो वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। सो ग्रेट। ग्रेट।
हम आते हैं जो बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है अबाउट वुमेन इन जनरल, जो कि मतलब यू ऑल्सो रियलाइज कि जितना भी हम कह लें बट कहीं ना कहीं वो आता है कि वी आर कीपिंग आवर सेल्स डाउन इन आवर प्रायोरिटी लिस्ट। तो व्हाई डू यू थिंक कि इंडियन फैमिलीज में ये होता है कि वुमेन हमेशा अपने हेल्थ को स्पेसिफिकली, हेल्थ तो उनका बाद में ही आता है। बहुत पीछे जाना पड़ेगा, बिल्कुल बचपन में चलते हैं। सी, हम लोग ना, जो बोला जाता है वो तो नहीं सीखते हैं, हम देख के सीखते हैं, बहुत कुछ हम पिक करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पेरेंट्स जो होते हैं सबसे पहले गुरु और पहले टीचर्स होते हैं। तो करेक्ट। हमारी सोसाइटी में एक चीज है कि फीमेल जो है वो केयर गिवर्स है। सारी फीमेल केयर गिवर्स है। अब करेक्ट। हमने अपने पेरेंट्स को देखा है, हमारे लिए आइडल वुमन कौन है? जो अपने आप को सबसे बाद में रख रही है। तबीयत करेक्ट। खराब है, बुखार आ गया मम्मी को, बट घर का सारा काम वही मैनेज कर रही है। राइट। कुछ भी हो जाए पापा का खाना वही बना रही है, कोई और नहीं है वहां पर। और कुछ भी हो जाए उनको वो करना भी है, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो नहीं करेंगी तो वो सेल्फिश है। वो सेल्फिश है अगर वो मना कर देंगे, क्योंकि एक अच्छी औरत जिसको कहते हैं वो तो वही होगी ना जो सब कुछ करेगी। सब कुछ मैनेज कर रहे हो तो आप बिल्कुल एकदम परफेक्ट फीमेल हो। तो ये एज अ डॉटर, मतलब जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है मैंने अपनी मदर से ही पिक कर लिया। राइट। और वही मुझे लगता है, बात तक भी आते होते मुझे ये लगता है कि नहीं नहीं, मेरे को तो सब कुछ देखना है। रात में 11 बजे पति आ रहे हैं बट मैं नहीं सो सकती, बिकॉज अब तो नहीं सोया जा सकता, क्योंकि उनको खाना भी नहीं देंगे हम। वो तो ऑफिस से पूरा थके हुए आए हैं, उनको खाना भी लगा के नहीं दे सकते हम। मतलब ये बहुत टाइम से ऐसा चलता आ रहा है और कहीं ना कहीं हम जनरेशन बाय जनरेशन इस चीज को लेते जा रहे हैं। और पास भी Correct. करते जा रहे हैं, जनरेशन बाय जनरेशन हम काफी आगे तक इसको पास कर, किसी ने भी इस पे फुल स्टॉप नहीं लगाया है अभी तक। हम्म। कोशिश करते हैं कई लोग, बट फुल स्टॉप नहीं लगाए कि हाँ बच्चों को कुछ अलग चीजें भी सिखाई जा सके। करेक्ट। करेक्ट। सिर्फ बता जबकि देने से बच्चे सीखते तो है नहीं। हाँ, करेक्ट। जबकि पहले से अभी तक में देखा जाए तो चेंजेस विमेन की एस्पेक्ट में काफी आई हैं। हाँ, जैसे विमेन बाहर भी काम कर रही हैं तो थोड़ा तो वो चेंज उसमें आना चाहिए कि हाँ भाई तुमने भी अपना ख्याल रखना है, बट वो हम शायद हम बड़ा बेटी बढ़ाओ हो रहा है बचाओ बढ़ाओ हो गया है, बट ये चीज हम नहीं कर पा रहे कि उनको अपने आप का ख्याल रखो वो भी यहाँ समझा पाए। यहाँ पता है निवेदिता, एक प्रॉब्लम और आ गई है। अब पहले क्या था कि पहले हमारे मदर्स हाउसवाइफ थे, होम मेकर्स थे, ठीक। हम्म। तो हम्म। उनके पास पूरी घर की जिम्मेदारी थी, ठीक है। हम्म। अब हमें तो, हम एकदम उसमें लगे ना कि हमें अपना करियर भी बनाना है, फाइनेंशियली हम्म। इंडिपेंडेंट भी होना है। अब हमने एक करेक्ट। एडिशनल जिम्मेदारी भी ले ली है। हाँ। एक और जिम्मेदारी है, अब हमें जॉब भी करनी है, हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी होना है, विद हम्म। मैनेजिंग ऑल अदर एवरीथिंग। वर्क। राइट। राइट। तो अब मैं देखती हूँ ज्यादा मेंटल स्ट्रेस है। बिल्कुल। वहां का भी स्ट्रेस है, घर का भी स्ट्रेस है। हम एक ही इंसान है पर इतना सब कुछ लिया हुआ है। वी नेवर आस्क फॉर हेल्प ऑल्सो। हमें यस। पहले से ही आंसर पता है कि सामने से आंसर आएगा नो। दिस इज अजम्पशन। आई एम टेलिंग यू, दिस इज अजम्पशन। हमारे ही अजम्पशन हैं ये। बिल्कुल। बिल्कुल। हमें नहीं मांगनी हेल्प। हमें नहीं आता ये कहना कि हम थक गए, हमसे नहीं होगा, तुम थोड़ा सा अपना ख्याल रख लो। राइट। वी फील गिल्टी अबाउट इट। यस, यस, मैं यही बोलने ही वाली थी कि आई कंप्लीटली एग्री टू दिस, क्योंकि जैसे मैंने भी मैं जो काउंसलिंग करती हूँ तो जो विमेन मेरे पास आती हैं वो ये इस गिल्ट में आती हैं कि हम नहीं कर पा रहे, डिस्पाइट कि दे आर डूइंग वेरी गुड प्रोफेशनली, लेकिन अगर उनका हेल्पर उनके बच्चे को खाना सर्व कर रहा है उसका गिल्ट उनको है। तो ये चीज से निकालना इज वेरी डिफिकल्ट अभी भी, बट धीरे धीरे मे बी चेंजेस विल कम। तो ऐसा मतलब अगर हम देखें इस चीज के बारे में बात करें तो शुरू से ये चीज होती तो आ रही है, बट क्या ऐसा लगता है कि पहले से अभी में लाइक वुमेन हैव फॉरगॉटन कि उनका ठीक रहना जरूरी है? जैसे पहले के अगर हम कुछ ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स देखें तो कुछ चीजें थी जहाँ पे वुमेन को मतलब प्रोटेक्शन भी मिल रहा था या थोड़ा रेस्ट भी मिल रहा था, बट अभी वो नहीं है, तो आर वी फॉरगेटिंग ऑल ऑफ दैट? देखो, थोड़ा कंडीशनिंग है, थोड़ा हाँ। कंडीशनिंग ने करा हुआ है, और थोड़ा हमारे निग्लिजेंस ने करा हुआ है। हम्म। अनटिल हमारी हेल्थ इस क्राइटेरिया पे नहीं आ जाती कि हम बेड रिडन हो जाएं,
हम्म। तब तक हमें नहीं लगता कि हम बीमार हैं। करेक्ट। जबकि हमारी बॉडी बहुत सिम्टम देती है, मतलब मुझे लगता है कि बेड रिडन होने से पहले बॉडी हम्म। इतने ज्यादा सिम्टम्स देती है, ब्लोटिंग, गैस, कॉन्स्टिपेशन, लथार्जी, नींद ना आना। ये इतने हम्म। बेसिक सिम्टम्स हैं जो मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द फीमेल्स एक्चुअली आफ्टर 30 सफर करती ही करती हैं। करती बट वो करेक्ट। सारे सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं। हम्म। और उसके बाद एक वो स्टेज आती है जहां पर आपकी हेल्थ, आपकी बॉडी बोलती है कि भाई अब नहीं हो पाएगा, अब इस शरीर से और नहीं काम हो सकता। करेक्ट। तब उनको लगता है कि अब हम शुरू करेंगे। हम्म। तुम कभी भी, मतलब मैं, मेरी ऑब्जर्वेंस है, हो सकता है कुछ लोग इस बात पे थोड़ा सा वो हो जाए कि हाँ ये मैं ऐसे बोल रही हूँ, बट तुम देखो फीमेल्स का, देखो जब तक उनकी शादी नहीं होती तब तक वो फिर भी वेट मेंटेन करती हम्म। है ना। उसके बाद हम्म। देखो वो 80, 90, 110, 120, 130, 140 किलो की हो जाती है, एंड उस पे भी हम्म। ओके हैं। हम्म। क्यों? हाँ, और कहीं कहीं ना कहीं वो मतलब वही बात है कि वेट तो एक ही चीज है, एग्जैक्ट। बट उसके साथ साथ इतनी चीजें कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं और हम जाग ही नहीं पाते कि नहीं, प्रॉब्लम है। तो ये एंड वेट तो भाई मतलब बहुत छोटा एस्पेक्ट है, मतलब वहां तो शुरुआत है। वहां से क्या हम्म। शुरुआत है? वहां से तुम्हारा कॉन्फिडेंस जाने वाला है। हाँ, हम करेक्ट। जितना भी बोल दें कि बॉडी पॉजिटिविटी, बॉडी पॉजिटिविटी, कुछ नहीं होता बॉडी पॉजिटिविटी। जब हम्म। आप देखते हो कि आप कभी ऐसे लगते थे और अब आप हम्म। ऐसे लगते हो, आप डिस्कनेक्ट राइट। कर जाते हो। तुरंत डिस्कनेक्शन आता है कि यार क्या हो गया मेरे साथ। आपको वो हम्म। फीलिंग है, आपको वो फील हम्म। आता है कि क्यों हुआ मेरे साथ। बट फिर हम्म। लाइफ हैपन, अगला दिन फिर आएगा, फिर वही सब। राइट। आपका ब्रेकफास्ट मिस हो रहा है, आपका हम्म। स्लीपिंग टाइम मिस हो रहा है, ठीक है, आप चाय बिस्किट पे सरवाइव कर रहे हो, फिर से वही। तो खुद को बांधा हुआ है, फ्री कर ही नहीं रहे हो। करेक्ट, करेक्ट। और फिर हमारे पास बहुत सारे रीजंस आ जाते हैं जो हम एक्सक्यूज बना लेते हैं कि हाँ, हमने हजार फैमिली देखना है। रीजनेबल हजार रीजनेबल एक्सक्यूजेस हम अपने राइट। को सेटिस्फाई करते रहते हैं, अरे यार मैं तो इसलिए नहीं कर पाती, मेरा तो 30 साल की हो गई ना, मेटाबॉलिज्म अब खराब हो गया है, अब तो थायराइड आ गया, अब तो होना ही नहीं है, पीसीओएस आ गया, अब तो होना ही नहीं है, शुगर आ गई, अब तो होना ही नहीं है, अब तो। करेक्ट, करेक्ट। इवन मैंने ये भी सुना है, बच्चा होने के बाद हो गया। लोग 2-2 साल हो गए हैं बच्चे हुए हुए, ठीक है, 2-2 साल, 5-5 साल, अभी भी नहीं कम हो पाया है। राइट, बिल्कुल राइट। सही बात है, वेट बढ़ा होगा, बिल्कुल ठीक बात है, आफ्टर प्रेगनेंसी वेट बढ़ा होगा, ठीक है। बट हम्म। कब तक इस बात का एक्सक्यूज? 10 साल तक, 20 साल तक, कब तक? हम्म। हम्म। राइट, हमें एक्चुअली माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है जहाँ पे हम एक्सक्यूज मेकिंग ना करें। हाँ। और एक्चुअली छोटे छोटे स्टेप्स भी काफी कुछ कर सकते हैं। लाइक, आपको क्या लगता है, लाइक इफ वी से कि किसी को स्टार्ट करना है, बहुत स्टक फील कर रहा है, एंड वो कहता है कि हाँ चलो, मेरे पास 5 से 10 मिनट मैं दे सकती हूँ, बस उससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती, तो क्या इतने टाइम में भी कुछ हम ऐसे ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जहाँ पे हम अपने हेल्थ की इम्प्रूवमेंट की तरफ काम करें? 5 से 10 मिनट अगर तुम फ्री हो पूरी तरह, ठीक है, तो हम्म। गो फॉर अ मूवमेंट, 10 मिनट का मूव करो, ठीक है। हम्म। लंच और डिनर के बाद थोड़ा सा मूव करो, ठीक है, वो एकदम हम्म। बैठने वाली चीज मत करो। छोटे छोटे हम्म। चेंजेस कर लो, डिनर टाइम अर्ली कर लो, ठीक है। हम्म। वही खा लो, सेम ही खा लो, ठीक है, बट थोड़ा हम्म। जल्दी खा लो। हम्म। ये बहुत बेसिक चेंजेस हैं, वही सेम खाना खा लो जो सबके लिए बना रहे हो, ठीक है, बट हाँ, उसको थोड़ा जल्दी कर लो। करेक्ट। बट वो भी नहीं होता, मैं बता रही हूँ, ये भी नहीं होता। हाँ, हमने क्या, कंफर्ट जोन। हाँ, मेरे पास कंफर्ट जोन डेंजरस है। रिसेंटली मैं एक क्लाइंट काउंसलिंग कर रही थी, एंड शी वाज लाइक कि दीक्षा मैं सब कुछ घर का खाती हूँ, मैं तो लौकी ही खाती हूँ दिन भर, तो पर फिर भी मुझे इतनी दिक्कतें हो रही हैं। सी लौकी क्यों खा रहे हो? क्योंकि वो बहुत कंफर्टेबल खाना है, सबके लिए बन जाता है, हम्म। सब खा गए घर में, ठीक है। बट हम्म। अगर मैं 30 दिन लौकी खा रही हूँ तो मुझे न्यूट्रिशन कहाँ मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। करेक्ट। एंड मैं वो चूज कर रही हूँ ऑप्शन जो कन्वीनियंट है। मैंने खाना हम्म। भी कन्वीनियंट ऑप्शन चूज कर लिया है, खुद भी खा रही हूँ, सबको खिला रही हूँ। तो वही है कि हम एक तो खाने के साथ भी एक रिलेशनशिप होता है। अगर हम पूरे टाइम एक ही चीज खाएं तो हम बोर हो ही जाएंगे, बहुत नेचुरल है। फिर वो हमें क्या ही न्यूट्रिएंट या एनर्जी क्या ही देगा। ये भी बात है। ओके।
अब हम आते हैं थोड़ा सा अबाउट फ्रीडम, जैसे हम इंडिपेंडेंस और फ्रीडम और विमेन की बात कर रहे हैं। तो अगर आज हम कोई मूवमेंट स्टार्ट करें, फ्रीडम फॉर वुमेन्स हेल्थ, तो व्हाट वुड बी द 5 freedoms दैट यू वांट वुमेन टू फोकस ऑन? सबसे पहले फ्रीडम फ्रॉम गिल्ट। गिल्ट ट्रिप से बाहर आओ भाई। गिल्ट ट्रिप से तो बाहर आना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है इस बात का कि आप अपने लिए खाना अलग बना सकते हो, अपने टेक केयर कर सकते हो, इस बात का गिल्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपकी अपनी जिंदगी में 24 घंटे में से 1 घंटा 2 घंटा आपके लिए नहीं है, तो फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एब्सोल्युटली। ठीक है, तो गिल्ट तो ये है ही। ठीक है। और गिल्ट है कि खाने के साथ, जैसे तुमने बोला ना भी, कि खाने के साथ भी हमारा एक रिलेशनशिप होता है। मैंने फीमेल्स के साथ देखा, वजन बढ़ते के साथ ही खाना छोड़ देते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। खाना ही नहीं खाते। फ्री हो जाओ इस बात से कि भैया कार्ब नुकसान देगा। सीखो इस बात से कि कब खा सकते हो, क्या खा सकते हो, बट ये चीज कि खाना ही नहीं है, इस पे आप सरवाइव नहीं कर सकते। अगर करेक्ट। खाने की जरूरत ही नहीं होती तो बॉडी तो फिर ऐसे ही चल रही थी, फिर तो कोई जरूरत ही नहीं है। बट वो बल्कि और मेंटल स्ट्रेस हो जाता है खाना छोड़ दो तो। आप देख रहे हो नहीं खा पा रहे हो, और आपकी मेंटल हेल्थ बिगड़ने लग जाती है। फ्रीडम फ्रॉम करेक्ट। दिस थिंग कि कैलोरी इनटेक जो है, मतलब हम खाएंगे नहीं, लेस कैलोरी लेंगे। ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम रीजनेबल एक्सक्यूजेस, अपने आप को बहाने देना बंद करो। ठीक है। प्रॉब्लम है इस बात को कंसिडर करो। अगर ब्लड रिपोर्ट सही नहीं आ रही है तो उन पे काम करो। मैं उल्टा देखती हूँ। मैं ये देखती हूँ ब्लड रिपोर्ट सही नहीं है, वो फर्क नहीं पड़ रहा, वजन बढ़ गया है, इस बात का फर्क ज्यादा है। अपोजिट करो। क्योंकि तुम पतले हो दैट डजंट मीन्स यू आर हेल्दी। करेक्ट करेक्ट। ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है कि वजन बढ़ गया है तो डेफिनेटली बीमारी आएंगी ही आएंगी, बट पतले हो दैट ऑल्सो डजंट मीन्स यू आर हेल्दी। तो ब्लड राइट। मार्कर्स आर इंपॉर्टेंट पैरामीटर। अगर आपको शुगर है, आपको कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, आप लथार्जी फील करते हो पूरे दिन में, आपको जरूरत है, आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, आपको अपने स्ट्रेस लेवल पे, मेंटल लेवल पे काम करने की जरूरत है। तो अपने आप को ये बहाने मत दो कि बच्चे नहीं सो पाएंगे रात के 11 बजे तक, तो इसलिए वो आदत भी आप नहीं डालिए। बिल्कुल। हमने ही बच्चों की आदत डाली है रात में 11 बजे तक ना सोने की। फिर आज जब वो नहीं हो रहा तो हम परेशान हो रहे हैं। करेक्ट। है ना। तो वो एक्सक्यूजेस देना बंद करो। ये तीसरी राइट। फ्रीडम फ्रॉम दीज रीजनेबल एक्सक्यूजेस। फोर्थ चीज जो मुझे लगता है कि फ्रीडम लोगों को लेनी चाहिए, मतलब करना चाहिए, तो सोचती हूँ सोचना पड़ रहा है मुझे इस बारे में कि और कहाँ कहाँ गैप है। एक थॉट मेरे दिमाग में जो आ रहा है इज अबाउट, women बहुत कॉन्शियस होती है कि हम दिखते कैसे हैं, हम्म। अपार्ट फ्रॉम वेट ऑल्सो। सो हम्म। ये भी एक चीज है जो मुझे लगता है कि उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होनी चाहिए। मतलब लुकिंग गुड एंड हेल्दी इज इम्पोर्टेंट, क्लीन हाइजीन इज इम्पोर्टेंट, बट एग्जैक्टली कि हम जैसे जिम में भी देखते हैं कि वो किए जा रहे हैं क्योंकि हमने हमने जॉलाइन ऐसे बनानी है, अपीयरेंस ऐसा बनाना है। तो आई थिंक उस पे भी हाँ, कुछ। फ्रीडम फ्रॉम बॉडी कंपैरिजन। ठीक है। हम्म। उसकी बॉडी ऐसी, मेरी बॉडी ऐसी, उसका ये हम्म। ऐसा, मेरा ऐसा। पहली बात तो कंपैरिजन कटरीना कैफ से कर रहे हो तो उतनी मेहनत करो। ठीक है। करेक्ट। या तो उतनी मेहनत करो। ठीक है। वो तो नहीं हो रहा। पर इस चीज की वजह से एक साइकिल ऑफ लूप और इमोशनल लूप चलता है। क्या चलता है, हम ऐसे नहीं हो पाएंगे, बॉडी क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। करेक्ट। आईने में देखते हो अपनी बॉडी के बारे में बुरा करते हो, अच्छा मेरा तो ये बहुत बेकार सा है, मेरी तो जॉ लाइन बहुत गंदी सी है, मेरे तो बाल बहुत खराब से हैं। ठीक है। तो या तो काम करो। राइट। हो नहीं रहा। ठीक है। और या फिर उसको छोड़ो। उसको छोड़ो और ये देखो कि तुम्हारी बॉडी में क्या अच्छा है। राइट। क्योंकि जब बॉडी से ही अच्छी बात, इस शरीर से ही चलना है, पर इसी की बुराई करनी है, तो नहीं करेक्ट। चल पाएगी ये बॉडी। सही। आप सिर्फ खाना नहीं खा रहे हो, आप लिटरली खाना नहीं खा रहे हो, आप इमोशंस भी खा रहे हो। आपको ये बिल्कुल। बात समझनी ही पड़ेगी कि ये यहाँ पर बॉडी कंपैरिजन से जो इमोशन जनरेट होते हैं, या तो फिर हम मेहनत करें, और नहीं कर सकते
तो फिर ये समझो कि तुम्हारी बॉडी में क्या अच्छा है और क्या हम्म, कर सकते हो उसको और बेटर बनाने के लिए। बट उसकी बॉडी हम्म, ऐसी है और मेरी भी ऐसी हो जाए, डजेंट मैटर। ये बहुत खराब कंपैरिजन में लूप है ये एक्चुअली। एक right, चीज मुझे यहाँ पर ये भी लगती है कि इमोशनल ईटिंग और इमोशंस को प्रोसेसिंग, इससे भी फीमेल्स को थोड़ा फ्री होने की जरूरत है। हम्म, फीमेल्स की जो इमोशनल प्रोसेसिंग है वो बहुत अच्छी नहीं है। वो हम्म, इमोशनल है, बिल्कुल सही बात है, बट वो कैसे उस चीज को प्रोसेस करती हैं ये हम्म, बहुत अच्छा नहीं है। करेक्ट, ठीक है, करेक्ट, हमने बहुत ही जुगाड़ लगाए हुए हैं उस जगह पर, हमें पता ही नहीं चलता हम कैसे इमोशनल ईटिंग के पैटर्न में फंस जाते हैं। आई हमारी थिंक चाय बिस्किट एक क्लासिक एग्जाम्पल है। चाय बिस्किट एकदम क्लासिक एग्जांपल है। वो एकदम Right. इंस्टेंट डोपामीन जैसा है कि ये ले लिया, अच्छा लग रहा है थोड़ी देर के लिए, बड़ा हाँ, सुकून। करेक्ट, आज करेक्ट, कुछ बहुत बुरा लग गया, चाय पिला दो भैया, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, आइसक्रीम खिला दो, हम्म, रंग खिला दो। तो अब भूख भी लगती है, मैंने नोटिस करा जब इमोशनल पैटर्न वाले लोगों के साथ डील करती हूँ मैं, उन्हें भूख हम्म, लगती है। करेक्ट, करेक्ट, बट वहां प्रोसेस करो इस बात के लिए, ये भूख कहाँ से आ रही है, खाना नहीं खाया हम्म, इसलिए आ रही है, या फिर आज कुछ दिन भर में ऐसा हुआ जिससे बहुत बुरा फील हुआ, और वो चीज़ हम्म, आप यहाँ से एक सेटिस्फैक्शन, एक छोटा सा सेटिस्फैक्शन हम्म, मिलता है, वहां जा रहा है। तो वो करेक्ट, करेक्ट, इमोशन फ्रॉम इमोशनल ईटिंग वाला जो फ्रीडम है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आई साथ थिंक ये बहुत, हाँ सॉरी, मैं कह रही हमें, थी ये बहुत रिलेटेड है कि इसी वजह से जब हम देखते हैं, जैसे अगर मैं अपना और आपका कंबाइन करूँ काम, तो जब स्ट्रेस आता है, एक बहुत विजिबल जो सिम्टम होता है स्ट्रेस में लोगों का होता है वेट गेन। और उसका कहीं ना कहीं कारण यही होता है कि जब हम स्ट्रेस्ड हैं, हम कोई चीज परेशान कर रही है, तो हम अपने माइंड को डेविएट करने के लिए कुछ हमने ऐसा खा लिया जो शायद हमें जरूरत है भी नहीं। वो जैसे कहते हैं ना, इमोशनल ईटिंग जैसे होती है, वैसे इमोशनल हंगर है। आपको शायद उतनी भूख लग नहीं रही, लेकिन आपको लग रहा है कि अगर मैंने वो कंज्यूम किया तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी और शुगर इनटेक बढ़ेगा, तो स्ट्रेस थोड़ा सा हट जाता है। मुझे अपना ही याद आता है जब मैं सोचती हूँ इमोशनल ईटिंग के बारे में, तो मुझे अपने बारे में ही याद आता है कि जब मैं कॉलेज में थी मुझे रात में जगना पड़ता था। जनरली सभी लोग रात में हम्म, जगते हैं, पढ़ाई तो रात में ही होती है कॉलेज के टाइम में, है ना। करेक्ट, मुझे कुछ भी दिन भर में बुरा लगा है, इवन मेरे नंबर भी खराब आ गए हैं, तो मैं वो सब कुछ चिप्स पे निकालती थी। हम्म, मैं मदर यूज टू कुक दिस मच फूड, वो सब खत्म करने के बाद आई वॉज लाइक मैं चिप्स भी खाऊंगी, हम्म, मुझे खाना ही है। मुझे रात भर में पता नहीं, मतलब मुझे लगता है मैं एक एक दिन में बड़े वाले 40 रुपए वाले जो पैकेट आते थे चिप्स के, कंज्यूम दैट। एंड जब मैं पीछे देखती हूँ मुझे लगता है कि ये मतलब क्या था, भूख लगी क्या थी, था। नथिंग, इमोशनल ईटिंग। इट्स अ पैटर्न हम्म, इमोशनल ईटिंग, आपको पता ही नहीं आपको इमोशंस कैसे प्रोसेस करने हैं, कहाँ राइट हम्म, करो कहाँ डंप करो। कुछ सन 92 में कोई चीज हुई है, 2000 में भी आ जाएगी वो, वहां से यहाँ तक की जर्नी चल गई है, क्योंकि उस टाइम पर हमने वो प्रोसेस ही नहीं किया। नहीं किया, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत क्लोज कनेक्शन है, मतलब जैसे अगर हम मेंटल हेल्थ की भी बात करें, तो हम कई बार जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम उनको ठीक करते हैं ताकि अभी सही हो जाए। और इसी तरीके से हमारी ईटिंग हैबिट, सब कुछ इज अराउंड दैट। हाँ, सब कुछ वहीं के अराउंड है। इवन एक फ्रीडम और जोड़ती हूँ, 5 पूछे थे, एक फ्रीडम ये है कि फ्रीडम, स्लीप और मूवमेंट, ये दो चीजें यू कैन नॉट निग्लेक्ट। फीमेल निग्लेक्ट बोथ ऑफ। एब्सोल्युटली, रात की ओवर थिंकिंग चल रही है, रात की नींद गई गई, ओवर करेक्ट, थिंकिंग में फंसे पड़े, आज ये हुआ था, कल ये हुआ था, सन 92 में वो हुआ था, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, नरसों क्या होगा, है ना। मेरी रात की नींद गई। बिल्कुल, बिल्कुल, और मूवमेंट भी, मैंने देखा फीमेल्स हम्म, कम मूवमेंट करती हैं। हम्म, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मूवमेंट की पावर योगा कर लो जाके, जिम कर लो जाके, नहीं। मैं कह रही हूँ 10 मिनट अकेले बैठो, अकेले हम्म, वॉक करने निकल जाओ। हम्म, और 10 मिनट जो अकेले आप टाइम दे रहे हो ना खुद को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। correct, वहां से इमोशन प्रोसेसिंग भी हो जाएगी, वहां से ये हम्म, thinking का लूप भी टूट जाएगा, वहां से बिल्कुल, फील गुड होना स्टार्ट हो जाएगा। राइट, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पर यही फियर, फ्रीडम ऑफ ओवर थिंकिंग तो भैया बहुत जरूरी है। ये लोगों को लगता है कि वजन कम करना मतलब
सिर्फ खाना कम खाना है, कैलोरी डेफिसिट। मैं हमेशा ये बोलती हूँ भाई, कैलोरी डेफिसिट नहीं है पूरी साइंस। समझो इस हम्म बात में, स्लीप कितना इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, तो माइंड सेट कितना इंपॉर्टेंट है। करेक्ट करेक्ट। तो आई मुझसे थिंक लोग कहते हैं, कितना वजन कम हो जाएगा, मैं कहती हूँ कितना माइंड सेट स्ट्रांग है। बस इतना बताओ माइंड सेट कितना है। अगर तुम ये बोलो तुम ट्रूली कमिटेड हो, तो मैं बोलूंगी मैं तो बहुत जल्दी दिमाग कम करवा दूंगी। तो वो कितना है, वो गैप बहुत बड़ा लगता है मुझे। हाँ मतलब ये हर हर एक चीज का बेस है। अगर हम अवेयर नहीं है, मतलब वो कहते हैं ना आधी इंफॉर्मेशन बहुत डेंजरस होती है। तो हमें बस ये पता है खाना कम कर दो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट ऐसा होगा नहीं। और बल्कि उससे और चीजें बढ़ सकती हैं पर और बहुत दिक्कतें। प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस आ गए। ऑब्जर्व करना, कई लोग बहुत फास्ट करते हैं, बहुत फास्टिंग पे रहते हैं, बहुत हम्म ज्यादा। और मैं कहती हूँ भैया, फीमेल्स को फास्टिंग उतनी ही करनी चाहिए जितनी जरूरी है। ठीक है, कभी तुमने कर ली, समझ आ गया, बॉडी क्लेंस हो गई, अब भैया वापस हम्म खाने पे आओ। क्योंकि तुम्हारी हम्म हॉर्मोन्स तुम्हें चला गए हैं, तुम्हारी बॉडी में बहुत, मतलब पूरे महीने में देखो ना, फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा हैं। हम्म, हम लाइफ की स्टेजेस की तो बात करते हैं, बट हम सिर्फ महीने की बात करें तो महीने में ही चेंजेस बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और वहां खाना छोड़ दो तो बॉडी कैसे, मतलब हॉर्मोन्स कैसे बनेंगे, कैसे काम करेंगे। बहुत हार्मोनल फ्लक्चुएशंस हैं खाना छोड़ देने पे। ये तो मेरा मेरा खुद का भी ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। जब मेरी शादी हुई उसके 1 साल तक मुझे जो भी कहते थे ये फास्ट करना है, ये फास्ट करना है, मैंने 1 साल तक इतने व्रत और फास्ट किए हैं। उसके बाद एकदम से वो होता है ना, अंदर से आया कि मुझसे नहीं हो रहा है। बिकॉज जोग्राफिकली लोकेशन चेंज हुआ, उसका एक इफेक्ट था। प्लस आपकी शादी होती है, उसमें इमोशनली साइकोलॉजिकली बहुत से चेंजेस हुए। बिल्कुल ही अलग न्यू सिटी में आप आए, उसमें चेंजेस हुए। तो 1 साल तक मुझे ऐसा लगा जैसे लिटरली कहते हैं ना कि खींचना, वो खींचने वाली हालत हो गई थी। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, भगवान को खुश करने का ये तरीका। हाँ, खुद को कष्ट देके भगवान को खुश नहीं करा। हाँ, तो ये तो मैं पर्सनली भी मतलब बिल्कुल इस चीज को समझ सकती हूँ कि वो चीज नहीं सही है। क्योंकि मतलब सही बात है, आप एकदम से नहीं कर सकते ना कि महीने में आप 10-10 दिन व्रत ही कर रहे हो और फिर आप चाह रहे हो कि आपकी बॉडी एकदम फिट एंड फाइन चले। तो मे बी वेट वाइज चल भी जाए, बट बाकी तो बहुत चीजें हम बर्बाद कर लेते हैं उसमें। भगवान की पूजा से पहले ना अपने शरीर की पूजा करना लोगों को सीखना चाहिए। हाँ मतलब बिल्कुल। भगवान क्या है, भगवान तुम में ही वास कर रहा है, बट अपनी तो रिस्पेक्ट नहीं है। बट एक हम्म आइडल की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। तो हम्म, अपनी रिस्पेक्ट तो करो, तब भगवान तक भी पहुंच जाएगी तुम्हारी। जो भी तुम्हारे मन में है वो भगवान तक भी पहुंच जाएगा। सही बट इस सही शरीर की बात है। respect करो। हम्म। तो नेक्स्ट सेगमेंट जो हमारा है वो थोड़ा सा और टुवर्ड्स क्लैरिफिकेशन। बिकॉज वही है कि अगर हम कंफ्यूज होते हैं, हमारे पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, तो न्यूट्रिशन तो बहुत दूर दूर तक हमारे समझ में आना नहीं है। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि एक ऐसा क्या हेल्थ मिथ है विच यू थिंक कि वुमेन मतलब वो उसको छोड़ना ही नहीं चाहती। सबसे पहला मिथ यही है कि खाना कम खाने से हम पतले हो जाएंगे, खाना कम खाने से हम सही हो जाएंगे। ये इतना जबरदस्त मिथ है दिमाग में औरतों के, कि उनको समझ ही नहीं आ रहा, उनका हार्मोन्स गड़बड़ हैं, उनकी चीजें गड़बड़ हैं। फर्टिलिटी में इशू आ रहा है, मैं बता रही, फर्टिलिटी का इशू भी बहुत ज्यादा आपके कम खाने से स्टार्ट हो जाता है। आपके हॉर्मोन्स को चाहिए, आप खाना दे रहे हो, उनसे हॉर्मोन्स बन रहे हैं। तो करेक्ट। जंक खा रहे हो तो उससे गलत तरीके की चीजें बन रही हैं। फिर आपको हम्म डिप्रेशन की, जंक तो कंट्रीब्यूट करता है डिप्रेशन वगैरह में भी। बिल्कुल। तो अब ज्यादा जंक खाते हैं, उनको डिप्रेशन वगैरह की फीलिंग भी होती है, उनको प्रॉब्लम्स हम्म आती हैं वहां पर। बट आप अच्छा खाना दोगे तो बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगी। आपको हम्म फास्टिंग की जरूरत नहीं है, आपको सही टाइमिंग्स की जरूरत है खाना खाने की। सही तरीके से हम्म सीखो कब क्या खाना चाहिए। हम्म, बॉडी को लेके right, चलो बिल्कुल यूनिवर्स नेचर के अलोंग। हम्म जैसे नेचर वर्क करता है वैसे ही आप वर्क करते हो, आप और नेचर बिल्कुल, आप नेचर का ही पार्ट हो। करेक्ट। बट हमने अगेंस्ट बनाना स्टार्ट कर दिया है। हम्म रात सोने के लिए होती है, हम काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा, नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो भी बहुत रेलेवेंट है इस रिस्पेक्ट में, क्योंकि जैसे हम मीठे की बात करते हैं, मीठे की बहुत सारे लोग हैं आई थिंक इंडिया में, तो क्योंकि वैरायटी भी इतनी है तो क्रेविंग होती है, शुगर नहीं खाना है, फिर वो एक अलग तरीके का गिल्ट आता है अगर खा लिया। तो अगर हम कंपेयर करें आज की डेट में बड़े सारे ऑल्टरनेटिव्स आ जाते हैं कि शुगर ले लो या जैगरी ले लो, मंक फ्रूट, डेट्स हो गए, तो इनमें से क्या सही है और क्यों? सब सही है और सब गलत है, डिपेंडिंग ऑन द गोल्स, ठीक है। अगर हम्म। आपको डायबिटीज है या आप प्री डायबिटिक में हो, ठीक है, तो हम्म। आप जैगरी बहुत ज्यादा नहीं कंज्यूम कर सकते। हम्म। डेफिनेटली जैगरी बेटर है प्रोसेस्ड शुगर से, उसके क्योंकि हम्म। उसमें एडेड मिनरल्स हैं, बट प्रॉब्लम इज दैट कि उसको अगर आप लिमिट से बाहर खाना स्टार्ट कर दोगे तो वो भी हम्म। आपको नुकसान देगी। तो ये तो मैं बहुत आम सुनती हूँ, मतलब ऑलमोस्ट बहुत बार सुनती हूँ मैं, हम तो शुगर नहीं यूज करते, हम तो जैगरी खाते हैं। हाँ। बिल्कुल आम है मेरे लिए बात सुनना। ठीक है भाई, हाँ। जैगरी अच्छी चीज है, एडेड मिनरल्स भी हैं, बट क्या आपके लिए ठीक है? द क्वेश्चन हम्म। इज क्या आपके लिए ठीक है? राइट। तो इफ यू आर समवन जिनको डायबिटीज है तो आपके लिए मॉन्क हम्म। बेटर है, ठीक है। एक्सेसिव हम्म। यूज तभी हार्मफुल है। करेक्ट। हम्म। तो कोई भी चीज एक्सेस में नहीं खा सकते आप। हम्म। तो बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए क्या फिट है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी ब्लड रिपोर्ट्स कैसी हैं, हम्म। आपकी हेल्थ कंडीशन क्या बोलती है। हम्म। तो बजाय इसके कि हम खुद आधी नॉलेज लेके चीजें हम्म। प्रोसेस करें, इट इज ऑलवेज गुड कि रिपोर्ट्स आए तो हम उन उससे कंसल्टेशन लें, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली एक रीजन है कि रिपोर्ट्स जैसी आई हैं वो क्यों आई हैं। तो हमें कुछ बदलना है तो वी डेफिनेटली नीड एन एक्सपर्ट गाइडेंस ऑन दैट। राइट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है जो जो हम बात कर रहे थे कि लेट नाइट वर्क मतलब काफी कॉमन हो गया है। हम अगेन, ऐसा नहीं है कि मैनेज नहीं कर सकते या कुछ सिचुएशंस में नहीं भी कर सकते हो, तो लेट नाइट पे अगर भूख लगे तो ऐसे क्या हेल्दी स्नैक्स ऑप्शंस हैं जो हम विदाउट गिल्ट खा सकें? पूरा कप ऑफ प्लेन ग्रीक योगर्ट खा लो, ठीक है, प्रोटीन रिच होता है, हम्म। गट के लिए भी अच्छा होता है, वो ले सकते हो, ठीक है। थोड़े से नट जीरे में सॉटे करके खा लो, आमंड्स खा सकते हो हम्म। बाद में, उससे भूख नहीं लगेगी। मखाना खा सकते हो, चना खा सकते हो, ठीक है, इवन सोयाबीन भी ले सकते हो, थोड़ा सोक करके, अच्छे से सोक करके उसका थोड़ा सॉटे करके वो खा सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं एक्चुअली में, हेल्दी पनीर खा सकते हो। मतलब पनीर, मुझे पनीर भी बहुत अच्छा है, मैं ये बोल रही हूँ पनीर खा अगर डाइजेशन बेटर है, ठीक है। सोया हम्म। पनीर ये सब तब खाओ रात में अगर डाइजेशन बेटर रहता है। अगर हम्म। डाइजेशन में दिक्कत है तो डेफिनेटली हम्म। ये मत लो, क्योंकि फिर सुबह ब्लोटिंग होगी, कॉन्स्टिपेशन हम्म। फील कर सकते हो। दूध ले लो, राइट। हल्दी वाला दूध ले लो, दूध इज गुड अच्छा। ऑप्शन। हम्म। अगर आप दूध नहीं ले सकते हो, मान लो आपको एलर्जिक है या पीसीओएस है, जिनको डेयरी अलाउड नहीं है, ठीक है, वो आमंड मिल्क ले लो। हम्म। इससे इमीडिएटली भूख बैठ जाती है, आपको नहीं लगेगी इसके बाद भूख, क्योंकि इनके अंदर जो चीजें हैं वो आपको हम्म। सेटिस्फाई कर देगी। हम्म। हाँ, राइट। ओके, तो ये एक ऑप्शन तो हमें मिल गया, बट स्टिल जो स्लीप कॉम्प्रोमाइज हो रही है उसको भी हमें कॉम्पनसेट करना है। आप हम्म। एक्चुअली में देखो, मैं तो ये बोलूंगी आप कॉम्पनसेट सुबह तो नहीं कर सकते। लोग सोचते हैं कि हम दिन में हम्म। सो जाएंगे और कॉम्पनसेट हो जाएगी, ठीक है। हाँ। हाँ। नहीं, बॉडी का फंक्शनिंग और बॉडी की क्लॉक ये बोलती है कि वो रात में ही डिटॉक्सिफाई कर रही है स्लीप टाइम। हम्म। तो वो दिन में तो वो करेक्ट। मॉड्यूल नहीं होगा आपका। बट ये है हम्म। कि हाँ, अगर कभी की बात है आपके कल का स्लीप नहीं अच्छा हम्म। हुआ तो आपने दिन में कंपनसेट कर दिया, दैट्स ओके। बट हम्म। रेगुलरिटी में अगर वही चल रहा है कि आप हम्म। साल भर में, मतलब 12 महीने में 11 महीने तो आपका रूटीन वो है, और एक महीना आप अच्छे से सो रहे हो, तो वर्क नहीं करेगा। हम्म। 11 महीने सही है तो एक महीने चल जाए। हम्म। बॉडी बहुत करेक्ट। इंटेलिजेंट सिस्टम है, वो कर लेती है मैनेज। हम्म। राइट। सो नेक्स्ट, न्यूट्रिशन की हम बात कर रहे हैं, बट एक चीज है जो हमने पहले भी मेंशन किया कि चाय, चाहे चाय इज मोर लाइक एन इमोशन। सो चाय के कुछ ऐसे हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स हैं जो हम दिन भर में जब हमें चाय की तलब लगे तब हम वो पी सकें? हर्बल टीज उठा लो, ठीक है, कोई भी टाइप की हर्बल टीज उठा लो, खुद से बना लो, सौंफ की चाय, जिंजर, जिंजर और तुलसी की चाय तो बेस्ट ही होती है, वो बेस्ट कॉम्बिनेशन हम्म। है, ठीक है। लेमन हम्म। बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है। अगर आपको ये नहीं पसंद आ गया, आप इन्फ्यूज वाटर बना लो, मतलब लाइक हम्म। डिटॉक्स वाटर बना लो, चाहे करी पत्ता एप्पल का बना लो, सिनेमन का बना लो, बहुत सारे हम्म। टाइप के इन्फ्यूज वाटर बना लो। हम्म। चाय
चाय का रिप्लेसमेंट पता है क्यों नहीं है? कई लोग बोलेंगे कि यार नहीं हो पाएगा, ये कैसे हो पाएगा? क्यों नहीं हम्म है? आप एडिक्टेड हो, और बिलीव मी यू आर एडिक्टेड, मैं खुद एडिक्टेड हूँ। मैं ब्रेकफास्ट के बाद एक कप चाय मुझे जरूरी है, मुझे दिक्कत होती है, क्योंकि मैंने खुद को एडिक्शन पे डाला हुआ है। तो मैं एडिक्टेड हूँ, करेक्ट। इस बात को मान लो। एक हाँ। कप चाय करो, धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी कम करो। अगर चाय हम्म कप पीते हो तो एक तो कप का साइज छोटा करो, जिससे हम्म वो ऑटोमेटिकली कंजम्पशन आपके साइकोलॉजिकल माइंड को ही बताओ हाँ हम पी, बट कम। हम्म दूसरा, तीन दो चाय से तीन पे लाओ, तीन से दो पे लाओ, फिर दो से एक हम्म पे लाओ। एकदम मत करो हम्म, चार से एक पे आ जाएगी। हाँ। फिर अगले दिन हम चार की बजाय छह पी लेंगे, हाँ, अगर हम एकदम से चार पे, चार से एक पे सर आते दर्द होता है बिल्कुल एकदम। वो होता है जैसे हम कोई भी चीज के ड्रग एडिक्ट होते हैं ना, तो एकदम वो नहीं, हैं। रिपल्शन आ गया, अब मतलब बॉडी रिपल कर रही है हमको। ठीक है, वो कहाँ से राइट। आता है? चाय में भी आता है, सर में दर्द होने लगता है, लथार्जी, हाँ नींद आ रही होती है, बिल्कुल ये सारे सिम्टम्स हैं उसके। हाँ। तो अपनी करेक्ट। चाय को रिप्लेस करो कि 4 कप चाय है तो 3 कप नॉर्मल चाय, और 1 कप जो हम्म चाय है वो हर्बल टी से रिप्लेस करो। फिर धीरे हम्म। धीरे 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 कम लेकर आओ उसको। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल। सो अब हम थोड़ा सा आते हैं माइंडसेट पे। मतलब बिकॉज आपकी खुद की जर्नी उस ऐसी रही है जहाँ पे आपने ये पूरा अंडरगो किया है। तो लाइक एंड ऑब्वियसली लाइक एवरी एवरी प्रोफेशनल इज अ ह्यूमन। तो जब जब आप बहुत ज्यादा क्रेव करते थे, लाइक व्हेन यू लेफ्ट एवरीथिंग दैट वाज अनहेल्दी एंड यू स्टार्टेड योर जर्नी, तो जब बहुत ज्यादा क्रेविंग होती थी तो क्या आता था दिमाग में, क्या क्या आपको ऐसा आता था जिससे आप रुक जाते थे? हाँ। पहले तो मैं यही क्वेश्चन करती थी कि मुझे आज ये इतनी क्रेविंग हो क्यों रही है। सच में मैं ये क्वेश्चन पूछती हूँ, आज भी पूछती हूँ कि मुझे इतनी क्रेविंग क्यों हो रही है। हम्म कुछ हुआ क्या दिन भर में आज मेरे साथ जो मुझे हम्म, नहीं पसंद आया, हाँ। या कुछ करना था मुझे वो नहीं हुआ, जिसकी वजह से मेरी बॉडी को बहुत अच्छा फील नहीं हुआ, मेरे मन को बहुत अच्छा फील नहीं हुआ। अगर वो है तो मैं उसको पहले तो थ्रो आउट करती हूँ, ठीक है, मैं लिख के करती हूँ। कुछ लोग किसी और हम्म तरीके से कर सकते हो, बहुत सारे मेथड है, मैं जर्नलिंग कर देती हूँ बात की। कि मुझे हम्म एक बार समझ आ जाए कि आज क्या हुआ है, क्यों ये मेरा मन कर रहा है। अब मुझे ये समझ आता है कि हाँ अब सिर्फ मन ही कर रहा है, हम्म तो मैं गिल्ट ट्रिप नहीं देती खुद को। मैंने गिल्ट करना बंद कर, गिल्ट ट्रिप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो लोग भूल हम्म जाते हैं। जब आप अच्छा हम्म खाते हो ना, जैसे आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, बहुत खा रहे हो आप, ठीक है, ट्रैवलिंग में रास्ते हम्म पर एंजॉय कर रहे हो, खा रहे हो, तो आप अगली बार जब आते हो आपको लगता है आपका वेट नहीं बढ़ा। हम्म क्यों? क्योंकि आपने मन से खाया, गिल्ट नहीं दिया खुद को इस बात का कि भैया मैंने खाया, और हाँ अगर मेरा वजन थोड़ा बहुत बढ़ा भी आएगा तो इट्स ओके, मैंने खाया था। हम्म बट लोग उल्टा कहते हैं, लोग खाते हैं और फिर गिल्ट भी देते हैं, अरे यार मैंने क्यों खाया, अब तो बहुत ही ज्यादा, कल तो मेरा वजन बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ आएगा, आएगा। ठीक है, हम्म तो बी अवेयर ऑफ योर चॉइसेस। जैसे मुझे क्रेविंग होती है तो मैं अवेयर हो जाती हूँ इस बात के लिए कि मुझे हो तो रही है, नाउ व्हाट हम्म टू ईट। राइट। मैं इसको स्विच कैसे कर लूँ किसी हेल्दी ऑप्शन की तरफ? हम्म चिप्स ना खाने पड़े, कोई और टाइप का चिप्स मिल जाएगा क्या जो बेटर होगा इससे? हम्म तो मैं उससे स्विच कर लूंगी, मैं भेलपूरी से स्विच कर लूंगी उसको। हम्म करेक्ट करेक्ट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये अवेयरनेस की कमी होती है लोगों के अंदर। वो खाते हैं फिर खुद को गिल्ट देते हैं और फिर वेट बढ़ाते हैं, और या हम्म फिर वो खाते हैं इस बात के बिना कि उनको प्रॉब्लम क्या है, उनको इमोशनल प्रोसेस करना है, तो वो हम्म चॉइसेस ऑफ जो उनका खाना भी है वो भी गलत पिक हो जाता है। हाँ करेक्ट। आइसक्रीम, ब्राउनीज, चॉकलेट्स, पता नहीं क्या क्या फिर पिक होता है। तो बी हम्म अवेयर कि क्यों हो रही है क्रेविंग्स। आई थिंक एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि पहले तो इमोशंस प्रोसेस करना सीखो, तो जैसे यू डू इट थ्रू जर्नलिंग। एंड आई थिंक हाँ, बहुत सी चीजें, कुछ लोग हैं जो सिर्फ बातें कर ले तो उससे भी उनका हो जाता है, हो किसी जाता से है। बात कर लो, किसी से शेयर कर लो। ग्रेट। एक जो लास्ट क्वेश्चन है मेरा इस सेगमेंट का, कि एक बहुत मेजर डिफरेंस क्या होता है उन लोगों में जो कंसिस्टेंट रहते हैं और जिन्होंने शुरुआत की तो बस वो मतलब उनने करना है, और कुछ ऐसे लोग जो हर मंडे शुरुआत करते हैं कि बस मंडे से तो हम करेंगे, बट वो हर मंडे से स्टार्ट करते हैं, तो उनमें एक बड़ा डिफरेंस क्या है? जो कंसिस्टेंट है ना, वो
पार कर जाएंगे, वो उस लूप से बाहर चले जाएंगे। हम्म, वो एक दिन ऐसा लूप है वो, जिसमें वो वेट लॉस वेट गेन कर रहे थे, वो एक दिन उस लूप हम्म, से बाहर चले जाएंगे। बट जो मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो कम करेंगे, फिर बढ़ाएंगे, फिर कम करेंगे, हम्म, फिर बढ़ाएंगे, फिर अपनी हेल्थ पे काम करेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर करेंगे। वो हम्म, करते रहेंगे अनटिल एंड अनलेस एक दिन आएगा जब उनकी बॉडी जवाब दे देगी कि इतना नहीं सह सकते। हम्म, आप हर समय खेल नहीं खेल सकते ना इसका, कि क्योंकि आपकी बॉडी कहीं खराब हो रही है। अब जो मैंने हम्म, इमोशनल ईटिंग या जो भी मैंने चीजें अपनी पीछे करी हैं, तो जिससे मेरी हम्म, बॉडी में जो भी खराबी हुई है, आई कैन जस्ट हम्म, इट। मैं करेक्ट। फिक्स नहीं कर पाऊंगी अब। बहुत हम्म, सारी चीजें फिक्स नहीं होती हैं, बस वो हम्म, रिपीटिशन पे चाहती हैं। राइट। तो वो है आपकी बॉडी के अंदर, फिर से आप अनहेल्दी करोगे, फिर से वहीं आ जाओगे। तो हम्म, ये मंडे वाले लोग हैं ना, सस्ते वाले लोग हैं, मतलब इनका सस्ता तरीका है, बहुत इजी तरीका हाँ, ढूंढते हैं ये लोग। तो वही जो इजी तरीके के जो स्लिमिंग टीज आ रही हैं, बहुत ही हम्म, इजी वे ढूंढते हैं कि कैसे भी कम हो जाए। हम्म, तो इनका फोकस क्या है कि सिर्फ वेट कम हो जाए, इनका फोकस ये नहीं कि रूट कॉज ठीक हो जाए कि क्यों बार बार हम्म, वजन बढ़ रहा है, करेक्ट। क्यों हम्म। बॉडी अच्छे से जो हम खा रहे हैं वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रही है। और इस अवेयरनेस के लैक की वजह से, जैसा लाइक सही आपने बोला कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है। मतलब बीच में मुझे याद है, क्योंकि मैं बहुत ओवरवेट रही हूँ हमेशा से। तो मुझे याद है कि इवन क्लोज वाले जो लोग होते हैं ना, जिनसे आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते, वो आके आपको सजेस्ट कर रहे हैं कोई मिल्क शेक है, तुम वो पी लो, तुम्हें भूख नहीं लगेगी और वेट कम हो जाएगा। तो एटलीस्ट मुझे ये नहीं पता था कि क्या मुझे करेक्ट करना है। बट मुझे ये जरूर पता था कि ये तो मुझे नहीं करना है, क्योंकि मतलब बहुत ही अजीब सा है। बट अभी भी अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इजीली लोग उसमें फंस जाते हैं, बिकॉज भाई वो शॉर्टकट्स चाहिए। उनसे रिजल्ट आता नहीं विदिता, ऐसा नहीं कि उनसे रिजल्ट नहीं आता। बट वो हम्म, शॉर्टकट मेथड क्यों है? क्योंकि वो तो तुम्हारा सस्टेनेबल लाइफस्टाइल है ही नहीं, वो नहीं है, हाँ। जिंदगी भर नहीं फॉलो कर सकते। हम्म, लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट है। लोग जीएलपी भी लगा ही रहे हैं ना, लोग हम्म, मुंजाओ भी लगा रहे हैं, उनसे भी वेट कम कर हम्म, रहे हैं। बट द हम्म, प्रॉब्लम, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग टू मेंटेन द लाइफस्टाइल, हम्म, जो कि आएगा, एक्चुअली आएगा सही खाना खाने से, सही हम्म, ये पता होने से कि कब सोना है, कब खाना है, किस टाइम करना है। जब तक वो हम्म, नॉलेज नहीं है, तुम लूप में फंसे रहोगे। हम्म। तो एंड आई जिन थिंक वो होलिस्टिक भी नहीं होता है, क्योंकि आप वेट लूज कर लो, बट वो एनर्जी वाला जो फैक्टर है, अगर आप एनर्जेटिक नहीं फील कर रहे तो आप कैसा भी लुक कर रहे हो, उसमें उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ओ, वो वैसा ही हो राइट। जाता है, लोग बोलने लगते हैं तुम तो कमजोर हो गए हो, हाँ, तुम डल लग रहे हो, तुम वीक लग रहे हो, ठीक है, तुम फील भी करेक्ट। नहीं कर रहे हो। तो रूट कॉज हम्म, को एक्चुअली में फिक्स द रूट कॉज, कि देखो आपने हम्म, जो कुछ भी किया है, चाहे मेंटली आपने इमोशनली जो कुछ भी अपनी बॉडी को टॉर्चर किया है, फिक्स हम्म, दैट रूट कॉज। एब्सोल्युटली। ओके, सो नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा रैपिड रैपिड फ्रीडम राउंड। सो इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं और कुछ वन लाइनर आंसर्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज हेल्थ मीन्स डैश। बैलेंस। एब्सोल्युटली। सेल्फ लव मीन्स सेल्फ लव मीन्स टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, चूज योर सेल्फ। राइट। एंड फ्रीडम मीन्स फ्रीडम मीन्स टू डू एनीथिंग यू वांट टू डू विदाउट एनीथिंग लाइक, हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हमारी बॉडी में ये काम नहीं कर सकते, दैट इज द फ्रीडम। ठीक है। कई लोग एब्सोल्युटली। लाइक यू वांट टू डू स्काई डाइविंग, बट प्रॉब्लम है आपकी बॉडी नहीं लेगी, यू आर नॉट करेक्ट। योर लाइफ फुली। तो वहां वो नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी कर सकते हो जो आप चाहते हो, आपकी बॉडी आपका माइंड सपोर्ट करना चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होनी चाहिए हर चीज में। राइट, राइट। ओके, एक ऐसा फूड जो हेल्दी फूड वाले लिस्ट में नहीं आता है, बट फिर भी यू नेवर आस्क women टू, मतलब आप हटा दो ऐसा नहीं बोलोगे आप। चाय।
चाय और कॉफी, आई नेवर से दिस टू माय क्लाइंट्स बिकॉज वो एक अनहेल्दी फूड है, बट वो एक आदत है, वो एक एडिक्शन है। तो अगर मैं उसको हटा दूं तो बेचारे बीमार हो जाएंगे, कुछ और नहीं अ, खाएंगे। तो मैं नहीं हटाती हूँ। बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं, बस ये एडिक्शंस हैं, जो एडिक्शन है लोगों को वो तुम नहीं हटा सकते हो, तो उसका सब्स्टिट्यूट देखना पड़ता है। वन हेल्दी हैबिट जो सबने बहुत ओवर कॉम्प्लिकेट करके रखी है। सही खाना खाना और टाइम पे खाना खाना, ये दोनों ओवर कॉम्प्लिकेट है। लोगों को बोल दो तुम 12 बजे अपना लंच कर लो या 1 बजे अपना लंच कर दो, उनको बहुत मुसीबत है इस बात पर। सिर्फ इसी बात पर मुसीबत है कि 12 से 1 लंच होना चाहिए। यही ओवर Exactly. कॉम्प्लेक्स चल रहा है। आपका डिनर लाइट होना चाहिए, वो जल्दी 6 बजे होना चाहिए, यही ओवर कॉम्प्लेक्स है, वो नहीं हो पाएगा। स्लीपिंग टाइम में बोल दो तुम 10 बजे तक सो जाओ, नहीं हो पा रहा। सो खाना बहुत दूर की बात है, मैं तो खाने तक पहुंचती ही नहीं हूँ कभी, मैं बस इतनी बात पे पहुंचती हूँ, यही ओवर कॉम्प्लेक्स है। जिसके लिए विमेन को गिल्ट फील करना मतलब इमीडिएटली छोड़ देना चाहिए। अपने आप को चूज करते समय बिल्कुल गिल्ट फ्री हो जाओ। चाहे दुनिया कुछ भी बोले, चाहे कुछ भी बोले लोग कि तुम्हें बिल्कुल ध्यान नहीं है, तुम यार ऐसी हो, तुमने ये नहीं पूछा, तुमने ये नहीं करा, भूल जाओ, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। ठीक है? क्योंकि कोई मैटर नहीं है, जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, वो इस बात से भी प्यार करते हैं कि आप अपने आप को चुन रहे हो। और करेक्ट। अगर ऐसा नहीं है, सो आई एम सॉरी, आप बिल्कुल भी सही सही लोगों के बीच में नहीं है। नहीं। करेक्ट। ओके, वन कंफर्ट फूड ऑफ योर्स। खिचड़ी, मूंग की दाल की। ओके। और अपने आप को रिचार्ज करने का फेवरेट तरीका। आई लाइक टू डांस, आई लाइक टू डू स्केचिंग। तो स्केचिंग मैं तब करती हूँ जब मेरा बहुत ही मूड खराब है, मतलब आज तो कुछ ऐसा हो गया है कि बिल्कुल ही आज कुछ अच्छा नहीं लगा, सो आई ड्रॉ दैट। स्केचिंग से मैं वही चीज ड्रॉ करती हूँ जो मुझे नहीं आता, तो जनरली माई स्केचेस आर सो डिप्रेसिंग। बिकॉज उसमें कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है क्योंकि बहुत ही ज्यादा, बट जनरली मतलब मुझे लगता है कि मैं वैसे खुश रहती हूँ जब से, मतलब सच बता रही हूँ, जब से अपनी हेल्थ पे मैंने काम किया है, मुझे हम्म। कभी गुस्सा नहीं आता। मोस्ट टाइम मेरे को गुस्सा ही नहीं आता, और हम्म। बहुत बेटर रहता है मेरा मूड भी। और ये मुझे सच में ऐसा फील होता है कि मेरी हेल्थ की वजह से ही हुआ है, क्योंकि इससे पहले मुझे हम्म। इतना गुस्सा आता था, ये लोग मुझे फीडबैक ही देते रहते थे कि थोड़ा सा गुस्सा कम करो, थोड़ा सा इरिटेशन कम करो अपने अंदर। हाँ। अब मैं रिचार्ज कर लेती हूँ ट्रैवल करके, ट्रैवल होके मतलब मंथ 2 महीने में थोड़ा सा कहीं घूम भी लेती हूँ, तो 2 दिन में ही रिचार्ज अपना हो जाती हूँ। वंडरफुल। ओके, सो अब हम आते हैं क्लोजिंग की तरफ। हमने काफी चीजें सुनी एंड आई होप कि हम सब ने जो ये सुना है वो कहीं ना कहीं हम इम्प्लीमेंट भी करें, क्योंकि हम जानते तो बहुत कुछ है बट हमें वो रिमाइंडर्स चाहिए होते हैं, थोड़ा सा वो एक्सपर्ट टच चाहिए होता है जहां हम चीजें एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। तो मेरा जो लास्ट सिग्नेचर क्वेश्चन है फॉर द एपिसोड वो ये है कि एक अनहेल्दी हैबिट, अगर हम विमेन की पे ही फोकस करते हैं, आज जितने जितने लोगों ने ये सुना होगा थ्रू आउट, अगर उनकी एक अनहेल्दी हैबिट है जो आपको लगता है कि उन्हें आज आज ही छोड़ देनी चाहिए, तो वो कौन सी हैबिट होगी? चाय और 2 बिस्कुट से दिन की शुरुआत करना बंद करो। बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। मतलब अपना गट पूरी तरह स्पॉइल कर रहे हो अगर आप 2 बिस्किट और चाय से अपने दिन की शुरुआत कर रहे हो, और ये बहुत लंबे समय में बहुत ज्यादा आपको इस चीज का भुगतमान भुगतना पड़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही चीजें आपके लिए जहर हैं, इट्स लाइक पॉइजन फॉर योर गट। एंड व्हेन राइट। यू रीच 40 आपको रियलाइज हो जाएगा कि कुछ खतरनाक हो गया है। करेक्ट, करेक्ट। ओके, सो वंडरफुल दीक्षा, थैंक यू सो मच। बहुत सारी चीजें हमें समझ आई और बेहतर समझ आई एंड आई होप कि जो भी हमने डिस्कस किया, जो भी हम बात कर रहे थे कि विमेन स्पेसिफिकली उनको करना चाहिए, आई होप कि इस इंडिपेंडेंस डे से वो अपने इंडिपेंडेंस को समझे और इन चीजों पे फोकस करे। एंड यस,
ये तो मैं पर्सनली वाउच करूंगी कि यू हैव द बेस्ट वे ऑफ गाइडिंग, एंड द रीजन इज कि आई थिंक वही है कि आपने वो जर्नी खुद ली हुई है, तो यू नो कि हम इमोशनली साइकोलॉजिकली कहाँ ऊपर नीचे जा सकते हैं, कहाँ जाते हैं। सो आई वुड रियली रिकमेंड कि किसी को अगर हेल्प चाहिए टू अंडरस्टैंड न्यूट्रिशन बेटर, तो दे कैन डेफिनेटली रीच आउट टू यू। एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच टू कम ऑन दिस एपिसोड। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी एंड आई होप कि फ्रीडम का मतलब है टू चूज योर सेल्फ अगेन एंड अगेन। कोई नहीं भी देख रहा तो प्लीज चूज योर सेल्फ, सबसे करेक्ट। इम्पोर्टेंट बात है। और मुझे लगता है कि यहाँ से शायद और औरतों तक ये बात पहुंचे। सो प्लीज टेक केयर ऑफ बिल्कुल। योर सेल्फ, बिकॉज आपकी वजह से ही आपकी फैमिली है। आपको उल्टा लगता है पर है नहीं। सो आपसे आपकी फैमिली है, तो आप बहुत कुछ दे रहे हो उनको। सो चूज योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच निवेदिता। थैंक यू, थैंक यू। ओके।